علیہ صلاۃ و سلام تبقى وتدوم لدوام الملك الحي القيوم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا ہے وحدہ لا شریک نے قرآن عظیم کے اندر، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد سے فتح تمہارے قریب ہے۔ اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی تمام آفتیں، تمام ذلتیں، تمام رسوائیاں، تمام تنہائیاں، تمام غموں کی پرچھائیاں، تمام ویرانیاں، تمام حیرانیاں، تمام جڑیں، خفت و خرابات کی تم سے دور رہیں گی اگر تم اللہ رب العزت کے قریب ہو۔ مصیبتوں میں اس کو پکارو، میرا رب ہر جگہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ موت رب کی طرف سے ہے، زندگی رب کی طرف سے ہے، دولت رب کی طرف سے ہے، غربت رب کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کسی جگہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک شاعر نے کہا ہے بڑے پیارے انداز میں کہ عاشقوں کا رسول اکرم کے خلد میں انتظار ہوتا ہے، اور جس کا کوئی نہ ہو زمانے میں اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ زمانے میں کسی انسان کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مولائے کائنات کے قول کے مطابق ہم اور آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کچھ مانگنا ہے رب سے مانگ، انسان سے مت مانگ۔ اگر کچھ لینا ہے رب کی بارگاہ میں آ، رب دیتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ جس کو لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، اسی کا ذکر چل رہا ہے، اسی کی بات چل رہی ہے۔ وہاں پر جو لوگ عبادت کرنے جا رہے ہیں انہی لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ علی کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ، کسی انسان سے مت مانگ۔ عرض کیا گیا ہے مولائے کائنات، اے داماد پیغمبر، اے والد شبیر و شبر، اے زہرا کے شوہر، یہ تو بتائیے گا اس میں وجہ کیا ہے؟ تو مولائے کائنات نے مسکرا کر کہا کہ دنیا میں اگر کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، کسی انسان سے کچھ مانگے گا، اگر وہ انسان دے دے تو احسان، اگر وہ انسان دے دے تو اس کا احسان، اور اگر نہ دے تو اس کی نظروں میں تجھ کو ذلیل ہونا پڑے۔ انسان سے مانگے گا، انسان اگر کچھ دے دے تو اس کا احسان رہے گا تجھ پر، اور اگر نہ دے تو ہمیشہ اس سے نگاہیں نیچی کر کے بات کرے گا۔ اے نادان رب سے مانگ، ارے رب اگر دے دے تو اس کی رحمت، اور نہ دے تو اس کی حکمت ہے۔ تو مولائے کائنات نے کہا دے دے تو اس کی رحمت، اور نہ دے تو اس کی حکمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر ہو، بات یہاں تک لانا تھی، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، موتا ہو، صفین ہو، فتح مکہ ہو، وقع ہو، خیبر ہو، کوئی بھی جنگ ہو، دنیا کی کوئی جنگ ہو، اللہ کے نبی ہمارا ایمان ہے جیسے کل دیکھا کرتے تھے آج بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ نوٹ کرتے چلو، دنیا کی کوئی بھی حق و باطل کی جنگ ہو، اللہ کے نبی نے کسی کافر سے نہیں کہا کہ محمد سے جنگ مت کر۔ اللہ کے نبی نے کسی کافر سے نہیں کہا کہ محمد کے پاس تعداد کم ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی ظالم سے نہیں کہا تو اے ظالم محمد کے پاس 313 ہیں یا 700 ہیں یا 10,000 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا تو یہی کہا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد سے فتح ہمارے قریب ہے۔ ہم کسی کے آگے گڑگڑائیں گے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے۔ آؤ اب اس خانہ کعبہ کی طرف چلتے ہیں، جس خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے عباس نے بازوؤں کو دیا ہے۔ نبی کا ذکر بعد میں کروں گا، آؤ پہلے یہ بچا کیسے ہے۔ بعد نبی پھر ایک بار آندھیاں چلی تھی، پھر ایک بار طوفان آئے تھے کہ لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا جائے۔ لوگوں نے پھر ایک بار مشورے کیے تھے کہ جو پہلے ہوتا تھا اب ہم پھر وہ تاریخ دہرائیں گے،
उस वक्त नबी थे जिन्होंने ताइफ के बाजारों में पत्थरों को खाकर दिल बचाया था। इस दौर में आका हुसैन हैं जिन्होंने करबला में सीने में तीरों को खाकर दिल को बचाया था। आओ दोनों तरफ चलते हैं। खानाए काबा को बचाना कोई मामूली बात नहीं। अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र चला था पिछले जुमे में, जिसने खानाए काबा को पकड़कर दुआ मांगी। बाद अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानाए काबा को कैसे बचाया ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आओ बाद नबी करबला जाने के बाद आका हुसैन ने उस खानाए काबा को कैसे बचाया। अल्लाह के नबी का ये जुमला तो हम और आप नोट करते चलते हैं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल 50 मरतबा 100 मरतबा जिंदगी में बारहा आपने सुना है। लेकिन ये तो समझ में आता है कि या रसूल अल्लाह आपसे हुसैन तो हो सकते हैं, आप हुसैन से कैसे हैं। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। हुसैन से मुस्तफा कैसे हैं तो सुन मेरे प्यारे, तारीख में जुमला दिया है अल्लाह के नबी की आगोश में जब यानी शहीदों का सरदार खेल रहा था, शहीदों का आका खेल रहा था, मुस्तफा ने अपने बेटे के चेहरे को देखकर कहा अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। साहबा खड़े तैयार करते या रसूल अल्लाह जुमला तो अच्छा है, हम इसे क्या समझे। तो अल्लाह के नबी का ये समझ लो कि जब तक हुसैन जवान नहीं होता मुस्तफा की आगोश में पलेगा, और जब मुस्तफा का लाडिला ये करबला जाएगा तो कयामत तक दीन मुस्तफा हुसैन से पलेगा। आज हुसैन मुस्तफा के पास है, मुस्तफा से है, कल दीन मुस्तफा का हुसैन के पास होगा तो कयामत तक मोहम्मद का दीन हुसैन से बनेगा। ये बात नहीं, काबे की बात है। काबा कैसे बचा, ऐसे ही नहीं बचा। आओ चलते हैं तारीख की तरफ। तारीख बतलाती है नबियों के नबी ने जब मदीने में ऐलान किया था कि है कोई ऐसा जो मोहम्मद के साथ खानाए काबा का दीदार करने के लिए जाएगा, हिजरत करके नबी मक्के से मदीना चले गए, उसके बाद का ये आलम है। लेकिन उस काबे को बचाने के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली गई हैं, बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हिकमतों से काम लिया, इतनी हिकमतों से काम लिया कि कभी किसी में कोई लड़ाई भी नहीं होने दी। अल्लाह के नबी मसलहत से पूरा का पूरा मामला पार कर ले गए। बोलो सुभान अल्लाह। इसे हिकमत कहते हैं। आओ खाने काबा के मंजर की तरफ चलने से पहले भी बात आई कि हुसैन बिन वाना मिनल हुसैन, तो हुसैन की शान क्या है याद आए कथा के दो शेर में दे रहा हूं। इंशाअल्लाह फिर अपने मौजू पर आऊंगा, जरा मोहब्बत के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह, तलब कर कहिएगा या रसूल अल्लाह। बात अगर सच्ची हो तो दुआओं से नवाजना कि रूहे अज़ां है बाप तो बेटा नमाज दी। बहुत दमदार शेर दे रहा हूं। अरे रूहे अज़ां है बाप तो बेटा नमाज दी, अज़ां है बाप तो बेटा नमाज दी, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का। हुसैनी तो मशहूर है लेकिन ना जाने शेर समझ में नहीं आया, मैंने क्या दोबारा कहूँ कि रूहे अज़ां है बाप तो बेटा नमाज दी, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का। शेर देखें कि जागीर की गुड़िया, अरे जागीरे की गुड़िया हुई तक़सीम इस तरह, हाँ जागीरे की गुड़िया हुई तक़सीम इस तरह, काबा अली का अर्श मुअल्ला हुसैन का, काबा अली का अर्श मुअल्ला हुसैन का, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का, काबा अली का अर्श मुअल्ला, काबा अली का अर्श मुअल्ला हुसैन का। काबे की बात चल रही मेरे प्यारे, अल्लाह के नबी ने मदीने में इरादा किया, ऐलान किया कि है
कोई ऐसा जो मोहम्मद के साथ खाना काबा को देखने जाएगा। जैसे कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी जिंदगी के अरीजों को पेश करने के लिए। ऐ मौला गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, बदकार है, मक्कार है, जैसे भी है तेरे दरबार में हाजिर है मौला अल्लाह हाजिर रख ले। ये काबा कोई ऐसे नहीं बचा। चलो नबी की बारगाह में चलते हैं। मदीने में नबी ने ऐलान किया, लोग दौड़ दौड़ कर आए, या रसूलुल्लाह हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे। अल्लाह के नबी अपने साथ एक लश्कर को ले गए, खेमे लगाए गए। काबे से कुछ दूरी पर अल्लाह के नबी ने पड़ाव डाला। रात को खबर मिलती है लोगों को मक्के से, यानी कि लोग ये ऐलान करते हैं, ऐ लोगों तुम गफलत की नींद सो रहे हो, मोहम्मद अपने साथ लश्कर को लेकर आया है जंग करने के लिए। बदर मोहम्मद ने जीत ली, उहद मोहम्मद ने जीत ली, खंदक मोहम्मद ने जीत ली। अब खाना काबा को आया है, यानी कि आबाद करने के लिए, तुम्हारे खुदाओं से इसका जुम्मन छुड़ाने के लिए, अरे हुबल्ला तो उस्सा को मिट्टी में मिलाने के लिए। ऐ नादानो ऐसे ही सोते रहे तो मोहम्मद काबे तक आ जाएगा। अभी तो मोहम्मद का लश्कर कुछ दूरी पर पड़ा है, अभी तो मोहम्मद का लश्कर थोड़ी दूरी पर है। ऐसा करो मोहम्मद इससे पहले काबे में घुसे, मोहम्मद से मशवरा किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को दौड़ाया। दौड़ाने के बाद कहा जाओ मक्के में जाकर लोगों से कहना ये जो अफवाहें फैला रहे हैं कि मोहम्मद जंग करने आया है, मोहम्मद किसी से जंग करने नहीं आया। अरे मोहम्मद तो खाना काबा का तवाफ करने आया है, तवाफ करके अपने घर वापस चला जाएगा। हजरत उस्मान गनी वहां पहुंचे। जाने के बाद में यानी कि उस्मान गनी ने वहां बात की। अब ये होता है तो वो बीच के आदमी हमेशा फत्तो खुराफात करते हैं। उधर उस्मान गनी बात करने के लिए गए और उधर से दो पासे दौड़ाए गए। मोहम्मद अरबी के यानी कबीले में आए। आने के बाद कहते हैं सरकार मक्की के जालिम बहुत बड़े यानी कि नहनजार हो गए हैं। क्या हुआ? कहा आपने उस्मान गनी को बात करने के लिए भेजा था या रसूलुल्लाह। कहाँ भेजा था? कहा उन जालिमों ने उनको पकड़ के धोखे से कमरे में बंद करके कत्ल कर दिया। उस्मान गनी का जब यानी कि ये आलम अल्लाह के नबी को मालूम पड़ा, अल्लाह के नबी को सदमा हुआ। उसी मैदान में एक पेड़ के नीचे गए। जाने के बाद तमाम साहबा इकराम को बुलाया। बैअत उस्मान ली गई, जिसको हम बैअत रिज़वान कहा करते हैं। ये वही बैअत रिज़वान है, बैअत उस्मान है जो अल्लाह के नबी ने मैदान में ली थी। सबने कहा था या रसूलुल्लाह हम आपके साथ हैं। अब उस्मान के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। अब दीन को पीछे नहीं रखा जाएगा, जो होगा आला ऐलान किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, लेकिन ये खबर झूठी थी क्योंकि उस्मान गनी शाम को वापस आ जाते हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह आपका खबर जो पहुंचाई गई वो आपको भड़काने के लिए पहुंचाई गई, क्योंकि तेज तर्रार आदमी को सिर्फ सीने में आग लगाई जाती है जैसे मोहरा बनाकर, मुझे को ले लो अगर इस्तेमाल किया जाए तो। उस्मान गनी आते हैं, कहते या रसूलुल्लाह आपको यानी कि बहकाने की कोशिश की गई है, आपको यानी रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि मोहम्मद मसलहत तो रखता है, हिकमत तो रखता है, कहीं ना कहीं खून में जोश भी है। ऐसा मोहम्मद जब भड़केगा तो जंग के लिए आमादा होगा। या रसूलुल्लाह मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की, बड़ी सलीके के साथ मुझसे गुफ्तगू की है, बड़ी सलीके के साथ लोगों ने यानी मुझसे बातचीत की है। अल्लाह के नबी को खुशी महसूस हुई। रात में तमाम लश्कर आपका सो रहा है, तमाम काफिले वाले तमाम कबीले वाले आराम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी इबादत कर रहे हैं। और उस लश्कर का जो पहरा लगाने के लिए अल्लाह के नबी ने इंसान चुना है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। पहरा दे रहे हैं। मक्के से एक जालिम आता है। जालिम कौन? अबू सुफियान था वो उस वक्त का, जो आता है आने के बाद में यानी कि ये नजर दौड़ाता है कितने हैं मोहम्मद के साथ मुजाहिद, तेरा देख तो लूं। अल्लाह के नबी की बारगाह में जब यानी कि ये खबर पहुंची, उमर फारूक आजम बेदारी में तो थे ही, उमर फारूक आजम को आहत हुई, फौरन अपनी तलवार को निकाल कर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब वो मक्के का काफिर आगे आगे है, यानी यारे खाने मुस्तफा का यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जावाज सिपाही उमर फारूक आजम उसके पीछे पीछे है। अल-मुख्तसर ये कि उमर को यानी कि ज्यादा वक्त नहीं लगा पकड़ने में, उमर ने पकड़ा, नबी के करीब लाए। अल्लाह के नबी इसका या रसूलुल्लाह ये मुसलमानों के खेमों में रात में झांकने की कोशिश कर रहा था, सरकार हुक्म दीजिए इसकी गर्दन को तलवार से जुदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से इरशाद फरमाया, उमर ये तो कोई बात नहीं है, आज एक मोहम्मद के सामने आकर अगर बैठा है तो मोहम्मद के शेबा नहीं, मोहम्मद के मंशा नहीं कि मोहम्मद उससे बदला ले, जा मक्के में कह देना कि मोहम्मद ने तुझको माफ फरमा दिया है। ये अदा मेरे नबी के देखिएगा। अबू सुफियान नीचे है, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते या रसूलुल्लाह क्या किया जाए? अल्लाह के नबी ने कहा आजाद कर दे, इसको छोड़ दे और जा ये ऐलान कर देना मोहम्मद ने कहा है जो तेरे घर में आएगा वो भी अमान पाएगा, जो खानाए काबा में जाएगा वो भी अमान पाएगा। अबू सुफियान दौड़ने के बाद में खानाए काबा यानी अपने घर पहुंचे। पहुंचने के बाद में लोगों से कहा लोगों, अरे मोहम्मद पर जिंदगी भर हमने जुल्म और सितम किए, अब
पेचीदा मसला रहा है आगे मेरे प्यारे। अबू सुफियान ने कहा कि हमने मोहम्मद पर जिंदगी भर जुल्म और सितम किए, कहीं चचा को मारा, कहीं किसी को कत्ल किया, कहीं किसी का कुछ लूटा, कहीं किसी का घर जलाया, कहीं किसी को कैसे ही सताया, आज हम जुल्म में फंसे तो मोहम्मद ने छोड़ दिया। वाकई दिल गवाही देता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है ये। वाकई दिल अंदर से कहता है कि दोनों आलम का मालिक और मुख्तार है ये। अल्लाह के नबी ने कहा यानी कि क्या ऐलान कर देना। अब वो ऐलान करता है ओए लोगों करीब आ जाओ। मोहम्मद ने कहा है कि अगर कोई मेरे घर आएगा अमान पाएगा, अल्लाह के घर जाएगा अमान पाएगा, तुम्हारी क्या मर्जी है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे। कुछ लोगों ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह किया, करने दो कुछ नहीं होता, एक आध के जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अल्लाह के नबी की बारगाह में भी वो बात आई। लोगों ने यानी तैयार किया नबी सुबह अपनी शान और यानी कि मोहब्बत के साथ में, अपनी कामयाबी के साथ में लश्कर को लेकर खाना काबा की तरफ रवा है। अल्लाह के नबी के साथ लश्कर जा रहा है। मक्के के जालिम अपने घरों से दुख कर देख रहे हैं। आए है बदर में हमने मुसलमानों को सताया, उहद में हमने सताया, खंदक में हमने सताया, यानी कि खैबर में हमने सताया। आज ना जाने हमारा क्या करेंगे। इतनी कसीर तादाद में मुसलमान आए हैं, सब दुख के देख रहे थे। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कोई भी छुप कर ना देखे, जिसे देखना है लश्कर इस्लाम को खुलेआम देखे। जाओ मोहम्मद ने तुम्हें अमान दी। अल्लाह के नबी पहुंचे, यानी पहुंचने के बाद तशरीफ रखी जब अल्लाह के नबी ने जलवा फरमा हुए। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम बदबख्त हैं, हम जालिम हैं, हम यानी कि बहुत नाकारा हैं, हमने जिंदगी भर मुसलमानों को सताया, जिंदगी भर आपकी बुराई करते रहे, जिंदगी भर आप पर ताने कसते रहे। या रसूल अल्लाह लेकिन आप आज हमारे पास तक आए हैं, आज हम आपके यानी कि जब शेर हुए तो आपने हमें बड़ी मोहब्बत से नवाजा है। या रसूल अल्लाह जैसा आप फैसला कर दें। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम्हें अमान है, जिसका दिल चाहे मुसलमान हो जाए, जिसका दिल चाहे मुसलमान ना हो जाए। तारीख बतलाती है कतारों में लोग खड़े हैं, अल्लाह के नबी बैठे हैं, निदामत के आंसू बरसाते हुए नबी की बारगाह में आ रहे हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह हम इतने बड़े कमीने हैं, हमें क्या सजा दी जाएगी, हमें क्या सजा दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोहम्मद तुम्हें कोई सजा नहीं देगा, जाओ मोहम्मद ने तुम्हें आजाद फरमा दिया है। अब जिसका जी चाहे मोहम्मद के साथ रह ले, जिसका जी चाहे वो अपनी औलाद के साथ रह ले। आजाद कर दिया अल्लाह के नबी ने उन लोगों को। इतनी बड़ी खताएं उन लोगों ने की, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्श दिया। तो लोगों ने कहा सरकार अब कहाँ जाएंगे। अल्लाह के नबी का मर्जी क्या है कलमा पढ़ा दीजिएगा। काबे में ले गए, अल्लाह के नबी तमाम को कलमा पढ़ाया है। इधर से मुसलमान रो रहे हैं, सिद्दीक हो, उमर हो, अली हो, गनी हो, यानी कि जो भी साहबे हो वो रो रहे हैं। खुद अल्लाह के नबी की आंखें भी भीग रही हैं। इधर से कतारों में खड़े खड़े ये लोग रो रहे हैं जो कलमा पढ़ रहे आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिएगा। अल्लाह के नबी मसरत के आंसू बरसा रहे थे। आज मोहम्मद का यानी कि काम पूरा हो गया, आज मोहम्मद ने काबे पे फतह पाई है। और इधर से लोग निदामत के अश्क बरसा रहे थे। आज अफसोस हमने मोहम्मद को जाना ही नहीं, हम आज तक मोहम्मद को समझे ही नहीं। मोहम्मद क्या है हमने ये कभी सोचा ही नहीं। अरे वो खाना काबा जिसको बचाने के लिए अल्लाह के नबी ने घर छोड़ा, वो खाना काबा महवे तमाशाई बनकर जुमला नोट करके चलना, वो खाना काबा जिसको बचाने के लिए मोहम्मद ने घर छोड़ा, मोहम्मद ने खानदान छोड़ा, मोहम्मद ने कुलवा छोड़ा। बादे नबी मौलाए कायनात ने जिसके लिए शहादत यानी कि शहादत का जाम नोश फरमाया, वो खाना काबा जिसके लिए सिद्दीक अकबर ने यानी अपने अंगूठे और अपनी एड़ी में दोनों का जिक्र आता है सांप से कटवाया। अरे वो खाना काबा जिसको आबाद रखने के लिए उस्मान गनी ने जिंदगी की हर दौलत कुर्बान कर दी, वो खाना काबा जिस काबे को बचाने के लिए उमर फारूक आजम ने यानी कि जिंदगी का तख्ता इधर से उधर कर दिया, वो खाना काबा जिस खाना काबा को बचाने के लिए ज़ैद बिन अरकम के मकान के अंदर यानी कि मिशन हुआ करते थे, बातचीत हुआ करती थी, वो खाना काबा जिसको बचाने के लिए और जिस खाना काबा के पालने के लिए हजरत बिलाल हबशी ने नंगी पुष्ट को तपते हुए देखा है, वो खाना काबा जिस काबे को बचाने के लिए लोगों ने अपनी औलादों को बताया है। किसी बाप ने बेटे को देखा है, किसी बेटे ने बाप को देखा है, कहीं बाप बेटी की तलवार के नीचे है, कहीं बेटा बाप की तलवार के नीचे है, लेकिन बेटी कदम पीछे न हटे क्योंकि वो एक थे, एक मुठ थे, एक जुट थे। आज ये भी अल्लाह का घर है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। न हमसे औलाद मांगी जाएगी, न सर मांगा जाएगा, न बाजू मांगे जाएंगे, न सीना मांगा जाएगा, न पैर मांगे जाएंगे, सिर्फ सपोर्ट मांगी जाएगी। अरे हुसैन से मांगा था, सब कुछ मांगा, हुसैन ने हंस कर कहा लब्बैक या मौला, तेरा हुसैन हाजिर है, जो तुझे चाहिए हुसैन देगा। अब्बास के बाजू तेरे लिए है, अकबर की जवानी तेरे लिए है, कासिम का शबाब तेरे लिए है, और मोहम्मद की गर्दन तेरे लिए है। आए मौला सब कुछ हुसैन का
اکیلے لیے ہیں. آج تم بھی حسینی ہو, تمہارا نام بھی حسینیوں میں آتا ہے, تم بھی کہنے چاہتے ہو. کہا تھا نا 2 جمعوں سے, ایک جمعے میں روک دیا گیا. زیادہ وقت نہیں ہے, صرف قومیت کا وقت